Okay, let's start. So, we were studying square of oppositions, right? In square of opposition, we studied about uh, categorical propositions, right? Now, who will tell me what are the four parts of this categorical proposition? There are four parts to it. What are those four parts? The first part is going to be the quantity, Yes, and then we have the subject, right, and we have the quality, right, which is also the copula, and then the predicate. right. Very good. And what is another name for this quantity? The quantifier. Right, quantifier. Can you give me one example of a categorical proposition? Yes, but do I have to be specific with it being A, E, I, or just No, general? general, general. Okay. All birds can fly. Okay, all birds. On all birds instead of can, I'll choose all birds are um, two-legged. Okay, are two-legged. That is also correct. And what would this be? A, E, I, or O? This would be A. Correct. Very good. Okay. So, and in quantifier, what are the two options? What are the two combinations that we have? All and some. No, Right. wait, sorry. R and R not. No, this is right. All and some. In quantity, we have all and some, which is Oh, also right. known as, इसको हम और क्या बोलते हैं? Universal and यूनिवर्सल किसको बोलते हैं? all. राइट. और सम को क्या बोलते हैं? But particular. राइट. वेरी गुड. पर्टिकुलर. एंड सिमिलरली हमारे पास क्वालिटी में भी दो चीजें होती है. क्या होता है वो? We have positive and negative. R not. राइट. पॉजिटिव, नेगेटिव, आर नॉट. तो इतना तुम लोग को कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, राइट? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का, कि ये चार पार्ट्स है, इसमें ये सब कुछ है. अभी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में हमने पढ़ा था उस दिन, चार रहते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशंस, ए, ई, आई, ओ. आई होप तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा इसका सेंटेंसेस बना के. Yes. ठीक है, ऑसम. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता क्या है. स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हम लोग के पास चार लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ. अब इसका एक स्क्वायर बन जाता है. कैसे बनता है स्क्वायर? इसके रिलेशंस को बना के, ठीक है. ये ए, ई, आई, ओ के रिलेशंस को बताते हुए एक स्क्वायर बन जाता है. जैसे कि ए और ओ, आई एंड ई. ये हो गया, कौन सा हो गया हमारा ये? Contradictory. राइट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी. ए और ई के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे हम? Contrary. राइट, कॉन्ट्रेरी. आई और ओ के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे? I and O subcontrary. राइट, सब कॉन्ट्रेरी. एंड ये दोनों के बीच में ई, ओ एंड ए एंड आई, ये दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलेंगे? Subalternation or subaltern. करेक्ट, वेरी गुड. सब ऑल्टरनेशन और सब ऑल्टर्न. वेरी गुड. ठीक है. तो अभी ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था उस दिन. इसके रूल्स तुम लोग को याद है? जी. ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कॉन्ट्रेरी का क्या रूल था. तुम थोड़ा बेसिक आइडिया मुझे बता दो. Contrary के लिए we go between A and E and करेक्ट. I सबसे पहले and then क्या आएगा? we see I and O.
नहीं, वो तो नहीं, सब sorry, I and O contrary is में। sub. Right. Sorry. The rule number one is going to be that both can't be true together. करेक्ट। And if A is true, then E is false for sure. राइट। But if A is false, हम्म। so E can either be true or false. It is undetermined. राइट, अनडिटरमाइंड और डाउटफुल उसको कहते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। और फिर सब कॉन्ट्रेरी का क्या है रूल्स? For sub-contrary, we have both cannot be false together. राइट। And both actually can be true together. राइट, वही, इधर ट्रू और फॉल्स, इट विल बी डाउटफुल या तो अनडिटरमाइंड, राइट? It remains the same, but the quality will differ. Quantity is same and quality will differ, right? फिर contradictory? For contradictory, it is either or. Either or as in? Like, okay, I'm so sorry, I'm just blanking on that one. No problem. If one is true, the other one will be 100% false. We have two pairs here for contradictory, A and O and E and I. तो अगर ये ट्रू है तो ये 100% फॉल्स ही होगा, अगर ये ट्रू है तो ये 100% फॉल्स ही होगा, अगर ये फॉल्स है ये 100% ट्रू ही होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये 100% ट्रू ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी, सबसे इजी वाला। फिर लास्ट में बचता है सब ऑल्टरनेशन। इसमें तुम लोगों को मैंने एक रूल बताया था, वो क्या था रूल? Truth always goes down and false comes up. राइट, कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू ही होगा, बट अगर ये फॉल्स है तो ये डाउटफुल हो जाएगा, और अगर ये हमारा फॉल्स है तो ये भी फॉल्स ही होगा, और ये अगर ट्रू है तो ये डाउटफुल हो जाएगा, राइट? इतना हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ओके ओके, तो अभी मैंने तुम लोग को बताया था हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक दो सॉल्व करके बताऊंगी, फिर तुम लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है? वी विल सॉल्व इट टुगेदर। फर्स्ट वाला हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, ओके? सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, which of the following statement is contradictory to the statement some birds are mammals? तो how do we tackle this question? सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे, some birds are mammals। तो पहले मुझे तुम बताओ कि ये कौन सा वाला स्टेटमेंट है, ए, ई, आई या ओ? I. राइट, दिस इज आई। ठीक है, अभी हम लोग को पूछा है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा है, तो अभी हम लोग पहले हमारा चार्ट बनाएंगे ए, ई, आई, ओ वाला। अभी उसमें हम लोग ए, ई, आई, ओ ऐसा हम लोग ने लिख लिया। इसको भी याद करने का एक्चुअली एक ट्रिक है, दिस इज ऑप्शनल फॉर यू गाइस, कि तुम लोग ना ऐसे पहले एक जेड बनाओ, ठीक है? तो उसमें पहले लिखोगे ए, ई, आई, ओ, तुम्हारा वावल्स जो रहता है उसका हम लोग ए, ई, आई, ओ लिखेंगे ये जेड बना के, तो इससे तुम्हें इजीली याद रहेगा कि कहाँ पे कौन सा लेटर आता है, ए, ई, आई, ओ। ठीक है, ये इजी ही है याद रखने के लिए, नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, ए, ई, आई, ओ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को दिया है आई वाला स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम लोग को पूछ रहे हैं कि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा। तो अभी मुझे बताओ इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, आई का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा प्रोपोजिशन होगा? E होगा, स्टेटमेंट 4। राइट, ई होगा। अभी हम लोग इसमें से देखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स कौन सा प्रोपोजिशन बनाता है। फर्स्ट वाला, सम मैमल्स आर नॉट बर्ड्स, ये कौन सा वाला है? That is O. वेरी गुड। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, That is again O. करेक्ट। सम मैमल्स आर बर्ड्स, I. वेरी गुड। नो बर्ड्स आर मैमल्स, ये कौन सा होगा? E, because हमने वो all and then negative की बजाय no and then positive लिए। वेरी गुड, यस। यहाँ पे हम लोगों ने तभी पढ़ा था ऑल बर्ड्स आर
नॉट मैमल्स, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था वो कॉम्बिनेशन बनाने में, बट हम लोग ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ऑल प्लस नॉट को हम लोग ने नो बना दिया, राइट। तो अभी हमारा इसमें से आंसर क्या हो गया, हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया, तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? स्टेटमेंट 4। करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नो बर्ड्स आर मैमल्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये अभी जून 2023 में ये क्वेश्चन आए थे, तो मैं वही तुम लोग को रीसेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द क्वेश्चंस कम, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू एज फॉल्स। अभी सबसे पहले हम लोग ये स्टेटमेंट देखेंगे, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, ये वाला कौन सा प्रोपोजिशन है? ओ। वेरी गुड, दिस इज ओ, ठीक है। अभी हम लोग फिर से हमारा वो चार्ट बनाएंगे, ए ई आई ओ, और यहाँ पे हमें ओ दिया है फॉल्स, ये हम लोग को फॉल्स दे दिया, ठीक है। अभी हम लोग को ये लोग ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू एज फॉल्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग ने चारों के रूल्स पढ़े हैं, हम लोग को चारों के हिसाब से वी विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट द ट्रूथ वैल्यू। जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि ये हम लोग आपस ये लोग का रिलेशन के आपस में हम लोग ट्रूथ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी लेंगे, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ऑपोजिट पे ले जाएंगे कि ये ए और इसका रिलेशन क्या है। अगर ये फॉल्स होगा तो ये ए क्या होगा? ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। अभी इसको हम लोग देखेंगे, अगर ये फॉल्स है तो ये ई वाला क्या होगा? पहले मुझे बताओ ये रिलेशन क्या होगा, ई और ओ के बीच का रिलेशन क्या होगा, पहले वो बताओ। सब ऑल्टरनेशन होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट झूठ ऊपर जाता है तो दैट विल आल्सो बी फॉल्स। करेक्ट, वेरी गुड, दिस विल आल्सो बी फॉल्स। और अभी ये बचा आई, ये क्या होगा? It is the opposite of ऊपर। Yeah, I'm blanking on the name. I'm sorry. दिस विल बी सब कॉन्ट्रेरी। सब contrary. तो इसका क्या होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा? That would be इट्स ओके, टेक योर टाइम। सब contrary में that would be doubtful. नो, दिस विल बी ट्रू। Right. ये कॉन्ट्रेरी में ऐसा था, कॉन्ट्रेरी में हमारे पास ऐसा था कि अगर, कहाँ गया वो नोट्स, कॉन्ट्रेरी में ऐसा था कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम। अगर ये ट्रू रहेगा तो वो फॉल्स होगा ही होगा, बट सब कॉन्ट्रेरी में ऑपोजिट था कि अगर ये फॉल्स होगा तो ये 100% ट्रू ही होगा, राइट। तो उसी लॉजिक से इसमें ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ये लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये तो हम लोगों ने पूरा चार्ट बना लिया कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। तो इसमें ये लोग पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू एज फॉल्स। तो इसमें कौन सा वाला फॉल्स दिख रहा है हम लोग को? ई। हाँ, No. तो इसमें यस, तो अभी हम लोग देखेंगे हमारे ऑप्शंस को, ठीक है। ऑप्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ये कौन सा प्रोपोजिशन हो गया? A. All and are. करेक्ट। नो एनिमल्स आर बर्ड्स, ये कौन सा प्रोपोजिशन हो गया? E. करेक्ट। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ये कौन सा है? A E I. राइट। सम एनिमल्स कैन फ्लाई, That would again be I again. नहीं, ये वाला ना ये लोग ने सिर्फ हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट दिया है। अभी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में तुम लोग को यही वर्ड्स यूज करना पड़ेगा जो दिया है हम लोग का। Right. मैंने तुम्हें बताया था 4 पार्ट से बनता है, तो यही 4 पार्ट्स होने चाहिए, उसके अलावा कोई और वर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने तुम लोग को बताया था कि 3 टर्म्स होते हैं, मिडिल, माइनर, मेजर, बोथ आर सपोज टू बी रिपीटेड ट्वाइस। तो इसमें ये वाला टर्म आता ही नहीं, फ्लाई वाला टर्म आता ही नहीं। सो दिस वाज जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है। तो according to this entire diagram, which will be the correct answer? That would be no bird. No animals are birds.
करेक्ट, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अभी तुम लोग ये वाला सॉल्व करो। जी। It would be the third one. Right. The answer is third. भी कैसे हुआ? Let us solve it together. Which of the following statement is contrary to no mammals are birds? सबसे पहले ये बताओ कि no mammals are birds कौन सा proposition होगा? E होगा। Right. अभी ये लोग कॉन्ट्ररी पूछ रहे हैं, हम लोग को डायरेक्ट पता है कॉन्ट्ररी रिलेशन ए और ई का होता है, AEIO। हमें पता है कि ये दोनों का कॉन्ट्ररी का रिलेशन है। अभी ये ऑलरेडी दिया हुआ है, वी जस्ट हैड टू फाइंड आउट दिस। तो ये ए वाला, ये तो नो बर्ड्स आर एनिमल्स, तो अगेन ई हो जाएगा। सम मैमल्स आर बर्ड्स, आई हो जाएगा। ये ए हो जाएगा हमारा, और ये अगेन आई हो जाएगा। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी ये वाला भी तुम लोग खुद ही सॉल्व करोगे। What did we statement 4? करेक्ट, ये आंसर इज राइट, स्टेटमेंट नंबर 4। कैसे आया स्टेटमेंट नंबर 4 आंसर? लेट्स सी। सम एनिमल्स आर बर्ड्स कौन सा प्रोपोजिशन होगा? I. करेक्ट, दिस इज गिवन एज फॉल्स, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। AEIO, हमारा आई दिया गया है फॉल्स। ये लोग पूछ रहे हैं विच विल बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी एज फॉल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग लेट्स सॉल्व इट बाय द रूल्स। ठीक है, अगर आई फॉल्स है तो ई बाय द रूल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? True. ट्रू। अगर आई फॉल्स है तो ओ क्या होगा बाय द रूल ऑफ सब कॉन्ट्ररी? That would be uncertain. If it is false, this will be true. That would be true. Yes. For Yes. Yes. And if this is false, I is false, then A will be sure. U2 पर जाता है, so that would also be false. correct. And हम लोग को ढूंढना था false, तो हमें पता है कि A वाला statement is the correct answer। अभी A इसमें से ढूंढना है। Some birds fly, ये क्या होगा? AEIO? Some positive I. No, again ये confuse करने के लिए दिया था। Right. Fly, यहाँ पे fly word है ही नहीं, तो this is out of the question कि ये option हो ही नहीं सकता है। Some animals are not birds, ये कौन सा होगा? Some not O. Right. No animals are birds. That would be all E. E. और लास्ट में क्या बचा? All animals are birds, ये कौन सा होगा? That would be A. करेक्ट, एंड यही हम लोग को फाइंड करना था, ये है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। क्या है? ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल, ये कौन सा प्रोपोजिशन होगा? That would be A. राइट।
सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉट पेरिशेबल, ये कौन सा प्रोपोजिशन होगा? Some negative O. राइट. सम ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल. Some and positive I. राइट, वेरी गुड. नो ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल. So that is E. राइट, वेरी गुड. अभी हम लोग उसका डायग्राम बनाएंगे. ए, ई, आई, ओ. ये लोग पूछ रहे हैं कॉन्ट्रडिक्टरी कौन से हैं. तो कॉन्ट्रडिक्टरी के हम लोग को पता है कि दो पेयर्स होते हैं. वो कौन से दो पेयर्स हैं? A O I E. राइट, ए एंड ओ, आई एंड ई. तो अभी हम लोग को पता है कि ये ए और ओ और आई और ई के दो पेयर्स हैं. तभी हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास. ए एंड डी, ए एंड डी. ये तो ए और ई का ऑप्शन बन रहा है, ये ए और ई है, तो ये फर्स्ट वाला नहीं होगा. बी एंड डी, लेट्स सी. बी एंड डी. बी एंड डी क्या बन रहा है? ओ और ई. या राइट, सब ऑल्टरनेशन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा. सी एंड डी, सी एंड डी, ये एक बन रहा है पेयर आई और ई का, हमारा सब ऑल्टरनेशन का. सो दिस कुड बी राइट. लास्ट का भी एक बार ऑप्शन देख लेते. ए एंड सी. ए एंड सी तो ए और आई का बना रहा है, ए और आई का अगेन सब ऑल्टर्न का बना रहा है, तो ये भी नहीं होगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी एंड डी. ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? जी. एनी डाउट्स इन दिस? No, just one question. के आपने बताया था कि it takes 1.5 minute, like it should take 1.5 minute per question. तो that is in this section also. हाँ, टोटल तुम्हारे पास 90 क्वेश्चंस, सॉरी 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स रहेंगे. 150 क्वेश्चंस, वो तुम्हारा 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1 रहेगा, 100 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 2 रहेगा. तुम्हारे पास 3 आवर्स रहेंगे ये पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, बीच में नो ब्रेक्स. तो तुम लोग को पर क्वेश्चन को 1.5 मिनट देना है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. जी. और जैसे जैसे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे तुम लोग को बहुत, अभी ये तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, ये तुम लोग को ये सब डायग्राम्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये तो मैं अभी तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ. ये जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे फटाफट 1 मिनट के अंदर ही ये सब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे या यू नीड माई हेल्प? खुद से अटेम्प्ट कर लो. ठीक है. Will it be option 2? यस, यू आर राइट. हम देखेंगे कैसे ट्रू हुआ. ठीक है. अभी हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन. तो ये कौन सा प्रोपोजिशन हुआ? A. राइट. अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे. ए, ई, आई, ओ. हमारे पास ये ट्रू दिया हुआ है. ठीक है. ये लोग पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड टू बी एज फॉल्स. सबसे इजी पहले लेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी लेंगे हम लोग सबसे पहले. ये ए ट्रू है तो ओ क्या होगा? That वो some and then not आना चाहिए, तो that would be C.
नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ए वाला प्रोपोजिशन ट्रू है तो ये वाला कौन सा होना चाहिए, ये ट्रू ओ होना होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स। एंड आमिना ने मैसेज डाला है फॉल्स। ओके, मुझे दिख नहीं रहा है मैसेजेस, उसका आवाज भी नहीं आ रहा है, बट ठीक है। आमिना, यू कैन सेंड योर आंसर्स ऑन द ग्रुप, आई गेस। ठीक है, अगर ए ट्रू है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉन्ट्रेरी ई क्या होगा? दैट विल आल्सो बी फॉल्स। यस, अगर ए ट्रू है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब ऑल्टरनेशन आई क्या होगा? दैट वुड बी ट्रू। दैट वुड बी ट्रू, राइट। अभी हम लोग को ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? नो क्रिकेटर्स आर रिच पर्संस, ये कौन सा प्रोपोजिशन होगा? ई। राइट। सम क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, वो कौन सा प्रोपोजिशन होगा? सम आर आई। आमिना ने मैसेज डाला है आई। ओके, नेक्स्ट। सी वाला क्या होगा? सम आर नॉट ओ। ओके, और डी वाला? सम आर आई। राइट। अभी हमारे पास ऑप्शंस में ये सब दिया हुआ है, हम लोग के पास फॉल्स कौन से है? ई और ओ, ई और ओ, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर ए एंड सी बन गया। ठीक है, प्रिटी सिंपल, राइट? जी। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी बोथ ट्रू ऑल्दो बोथ मे बी फॉल्स। अभी ये रूल किसका है? क्वेश्चन में पूछा ए ई आई ओ, ऐसे पूछ रहे हैं कि दोनों भी ट्रू हो दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं। एक ये लोग पूछ रहे हैं कि एक ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स ही होगा, बट दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं। ये कौन से वाले रूल में है? दैट वुड बी कॉन्ट्ररी। वेरी गुड, दिस विल बी कॉन्ट्रेरी। एक ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स ही होगा। अभी हम लोग को पता है कि ये ए और ई कॉन्ट्रेरी में आता है, तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस नाउ। पहला वाला, ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर रिच पर्सन्स, ये कौन सा प्रोपोजिशन हो गया? ए। नो फुटबॉल प्लेयर्स आर रिच पर्सन्स, दैट वुड बी ई। राइट। सम फुटबॉल प्लेयर्स आर रिच पर्सन, सम आर आई। और लास्ट वाला क्या होगा? सम आर नॉट ओ। वेरी गुड। अभी हम लोग को ए और ई देखना है। ए और ई कौन सा ऑप्शन में है? ए एंड बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे। जी। वुड इट बी ऑप्शन 3? नो, ट्राई अगेन। Amina says option 1. हाँ, ट्राई अगेन आमिना। ओके, आई विल हेल्प यू आउट। ऑल गोल्फ प्लेयर्स आर रिच, ये कौन सा प्रोपोजिशन हो गया? वो A. राइट, ए हो गया। ये लोग ने बोला इट इज गिवन एज ट्रू, तो अभी हम लोग देखेंगे, हमारा चार्ट बनाएंगे। ए ई आई ओ, हमारे पास ए दिया हुआ है ट्रू, ठीक है। अब बाय द रूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी हमारा ओ क्या हो जाएगा? False. वेरी गुड। अभी हमारा बाय रूल ऑफ कॉन्ट्ररी
ए अगर ट्रू है तो ई क्या होगा? फॉल्स। वेरी गुड। कॉन्ट्ररी में अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यही अगर सब कॉन्ट्ररी होता तो अगर ये ट्रू होता तो ये डाउटफुल हो जाता, बट अगर ये फॉल्स होता तो ये 100% ट्रू हो जाता। ठीक है, ये तुम लोग यू गाइस कीप रिवाइजिंग दिस। ओके ओके। बाय द रूल ऑफ सब ऑल्टरनेशन, अगर ये ट्रू है तो आई क्या होगा? ट्रू। ट्रू। वेरी गुड। अभी हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे। नो गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन्स, ये क्या हो जाएगा? कौन सा प्रोपोजिशन हो जाएगा? ई। राइट। सम गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन, ये क्या हो जाएगा? सम आर आई। सम रिच पर्सन्स आर गोल्फ प्लेयर्स, ये क्या हो जाएगा? आई। सम रिच पर्सन्स आर नॉट गोल्फ पर्सन्स, ये क्या हो जाएगा? सम आर नॉट। ओ। ओ। ठीक है। अभी हम लोग के पास, हम लोग को पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड एज ट्रू। तो ये डायग्राम में से ट्रू कौन सा आ रहा है? आई। आई ट्रू आ रहा है, राइट? यहाँ पे हमारे पास बी एंड सी दोनों भी आई है, सो द आंसर विल बी बी एंड सी। तुम्हारा डाउट, जो भी तुम्हारी गलती हो रही थी, क्लियर हो गया? जी, बट इसमें हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है फ्रॉम गोल्फ प्लेयर टू रिच पर्सन, लाइक हाँ, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सिर्फ पोजीशन चेंज हो गया है। ठीक है, वो आगे हम लोग और एक हम लोग जब वेन डायग्राम वगैरह करेंगे ना, वेन डायग्राम, मूड्स एंड फिगर्स, उसमें तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट हैपेंस। ठीक है जी। ओके। पर ये स्टेटमेंट मतलब ये जो प्रोपोजिशन है वो तो वही रहेगा ना, आई ही रहेगा। तुम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ वहां कर दो, प्रोपोजिशन तो वही रहेगा ना। राइट। ठीक है, तुम्हारी क्या मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे? बी कंफर्म आ रहा था, बट आई वाजंट श्योर अबाउट सी क्योंकि वो रिच पर्सन्स पहले आ गया था। ओके ओके, ठीक है, वो आगे हम लोग मूड्स एंड फिगर्स पढ़ेंगे प्रोपोजिशंस का, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, next question is, which of the following statement is contradictory to the statement all dogs are friendly animals? अभी पहले मुझे बताओ, ये all dogs are friendly animals कौन सा proposition होगा? दैट वुड बी ए। Very good. ऑप्शंस में जो दिया है पहले वो देख लेते हैं। नो डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, ये क्या होगा? ई। ई। सम फ्रेंडली एनिमल्स आर नॉट डॉग्स, ये क्या होगा? सम आर नॉट। ओ। ओके। सम फ्रेंडली एनिमल्स आर डॉग्स, ये क्या होगा? सम आर आई। वेरी गुड। सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल्स, ये सम क्या आर होगा? नॉट। ओ हो जाएगा। ठीक है, अभी ये लोग ने पूछा है ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, इसका स्टेटमेंट हम लोग को पूछ रहे कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा? ए ई आई ओ। अभी यहाँ पे हम लोग को पता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी रूल का क्या होता है, ए और ओ का पेयर बनता है कॉन्ट्रडिक्टरी में, बट यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास दो दो ओ है, बराबर? तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में तुम कोई भी टिक करके आ जाना, और फिर तुम लोग जब आंसर की रिलीज होगा ना, तुम लोग ये क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब चैलेंज करेंगे तो फिर हमें वो आंसर, मतलब यहाँ पे दो दो आंसर है तो हम लोग को उसका आंसर का मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो तभी तुम लोग डोंट वरी अबाउट इट, तुम लोग जो आंसर तुम लोग को दोनों में से कोई एक मार्क करके आ जाना, उसका तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन ऐसा डाला था क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स होती है कभी कभी क्वेश्चन में। ओके एनटीए ने फिर लास्ट में ये आंसर को राइट कर दिया था और बाकी सबको मार्क्स दे दिया था, मतलब आंसर की में ये आंसर राइट दिया था, फिर लास्ट में जब रिजल्ट आया था तब ये आंसर को ये लोग ने राइट, आई मीन सबको मार्क्स देते थे ये आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some pandas are herbivorous animals is given as true, then which of the following statements can immediately infer to be false? तुम लोग ये करो क्वेश्चन।
जी. Would it be 1? यस, यू आर राइट. कैसे बनाएगा, लेट्स सी. स्टेटमेंट दिया है सम पैंडाज आर हर्बिवोरस एनिमल्स. तो ये कौन सा वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, कौन सा प्रोपोजिशन हो जाएगा? I. यस, ये लोग ने बोला है ये ट्रू है, तो लेट्स सी. ए ई आई ओ, ये ट्रू दिया है, ठीक है. अब ये लोग पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड टू बी फॉल्स. अभी लेट्स सी, हम लोग अपना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के रूल्स लगाते हैं. अगर आई ट्रू है तो ई क्या होगा? False. राइट. और अगर आई ट्रू है तो ए क्या होगा? जाता है, shoot ऊपर जाता है. That would be uncertain. यस, दिस विल बी अनडिटरमाइंड, दिस विल बी डाउटफुल, वी डोंट नो. फिर अगर आई ट्रू है तो ओ क्या होगा? Because of sub-contrary, that would be false. नो, दिस विल बी डाउटफुल. ये कॉन्ट्ररी होता तो ये फॉल्स हो जाता. यहाँ पे ट्रू है, अगर ये फॉल्स होता तो ये ट्रू हो जाता, बट ये ट्रू है तो ये डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है. सो दिस विल ऑल्सो बी डाउटफुल. और हम लोग को पूछा है फॉल्स कौन सा होगा. यहाँ पे तो एक ही फॉल्स बन रहा है जो है ई, और हमारा ई वाला स्टेटमेंट फर्स्ट है. ये ई है, ये ए है, दिस इज ओ एंड दिस इज अगेन ए. ठीक है, हमें ढूंढना था ई जो है फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are so related that they can both be true together but cannot be false together? तो ये कौन सा वाला रूल बोलता है? हो गया. Ji, Amina says option 1. I think I'm going for option 2, A. Okay, so here unfortunately Amina is right. Option number 1 is correct. कैसे करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर 1? ये लोग पूछ रहे हैं कि which of the following statements are so related that they can both be true together but cannot be false together. अभी ये किसका रूल है कि दोनों ट्रू हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते? Okay, I get it. It's actually sub-contrary. मैं contrary लगाया था. अच्छा, इसीलिए आपका आंसर गलत हो गया. सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन में अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा 100%. बट अगर ये ट्रू है तो दिस कुड बी ईदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो ये लोग ने यही पूछा ना यहाँ पे कि दे कैन बोथ बी ट्रू टुगेदर. ये दोनों ट्रू हो सकते हैं बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर. अगर ये फॉल्स है तो ये 100% ट्रू ही होगा. तो उसके हिसाब से आई और ओ हमारा सब कॉन्ट्रेरी हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो सब कॉन्ट्रेरी के लिए हम लोग देखेंगे हमारे ऑप्शंस पहले. ऑल मशरूम्स आर फंगाई, ये क्या होगा, कौन सा प्रोपोजिशन होगा? A. ए. नो मशरूम आर फंगाई, ये कौन सा प्रोपोजिशन होगा? E. सम मशरूम्स आर फंगाई. I. वेरी गुड. एंड सम मशरूम्स आर नॉट फंगाई, ये क्या होगा? That would be O. और हम लोग को क्या पूछा है? सब कॉन्ट्रेरी. सब कॉन्ट्रेरी ये दोनों का है. दैट मेक्स आवर आंसर सी एंड डी विच इज ऑप्शन नंबर 1. ओके ओके, नेक्स्ट. अभी ये भी तुम लोग ही सॉल्व करोगे. Yeah.
Be option 1. Yes, correct. Option number 1 is the right answer. कैसे right answer हुआ? Some ये जो statement है वो कौन सा proposition हुआ? I. Okay. ये लोग ने बोला ये false है, ठीक है. अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे A E I O. ये लोग बोल रहे हैं कि ये false है, I is false. रूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी क्या बोलता है? अगर ये false होगा तो ये क्या होगा? E. True. ट्रू. अगर ये false है I तो A क्या होगा? By subalternation, it would be false. वेरी गुड. और अगर ये false है तो ये क्या होगा? I O. That would be undetermined. नो, दिस विल बी ट्रू. सब कॉन्ट्ररी का रूल बोलता है ये ट्रू होगा. अगर ये ट्रू होता तो ये अनडिटरमाइंड होता, बट ये हमारे पास फॉल्स है, राइट? तो अभी ये लोगों ने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड टू बी एज फॉल्स? ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑल क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर्स, ये हो जाएगा ए. नो क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर्स, ये हो जाएगा ई. ये हो जाएगा ओ. ये हो जाएगा ये सम नॉन फास्ट बॉलर्स आर नॉट नॉन क्रिकेटर्स, ठीक है. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ये कंफ्यूज करने के लिए तुम लोग को दिया था स्टेटमेंट ये लोग ने, तो ये हम लोग साइड में रख देंगे, इसको नहीं देखेंगे. ऑल क्रिकेट, ये मतलब आगे जाके हम लोग जब वी विल डीप डाइव इनटू इट एंड वी विल सी कि ये स्टेटमेंट्स को कैसे टैकल करते हैं, बट ये बेसिकली तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ही दिया था, ठीक है. ऑल क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर्स. अभी हम लोग को ये लोग ने फॉल्स पूछा था. फॉल्स का ये तीनों ऑप्शन में से फॉल्स कौन सा था? हमारा ए था. तो ये ए हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आता है. दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Would it be option 1 because of contrary? Yes, correct. A E I O. ये लोग पूछ रहे हैं they cannot both be true but they both may be false. तो अगर ये true है तो ये definitely false ही होगा, but अगर ये false है तो this could be either true, it could be either false or true. तो ये contrary में ही ऐसा होता है जहाँ पे they cannot both be true but they can both be false. अभी A और E देखना है हम लोग को. हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? ऑल स्पोर्ट्स पर्सन्स आर एथलीट्स, ये हो जाएगा ए. नो स्पोर्ट्स पर्सन आर एथलीट्स, ये हो जाएगा ई. सम स्पोर्ट्स पर्सन्स आर एथलीट्स, ये हो जाएगा आई. और ये हो जाएगा ओ. हम लोग को कॉम्बिनेशन चाहिए ए और ई का, जो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी में, ठीक है. तो हम इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. दिस इज आवर राइट आंसर. ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व कर लो. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. आई मीन ऑप्शन नंबर 3, डी ओनली. कैसे होगा? लेट्स सी. नो मेटल्स आर गैसेस, ये सबसे पहले तो हमारा ई स्टेटमेंट है, उसको बोला है कि ये फॉल्स है, ठीक है. लेट्स सी. ए ई आई ओ. Sad, did you say D? Did you say option number 3? No, I actually said statement 4. वो 4 statements जो दिए हैं हमारे पास. Okay. I think there's some mistake in the question itself. नहीं choose किया था, that's it. I think there's some mistake in the question. Okay, let's see. We'll solve it together. I think there's some printing mistake in the question. We'll see it together. ठीक है? No metal are gases is given as false. One second. Yeah. So this is given as false. ठीक है? अभी according to rule of contradictory, this will be true. According to rule of subalternation, this will be doubtful.
एंड दिस अगेन विल बी डाउटफुल, क्योंकि ये फॉल्स है तो ये अगेन ट्रू या फॉल्स हो सकता है, तो दिस विल बी डाउटफुल। ये भी डाउटफुल होगा क्योंकि झूठा इंसान नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर जाता है, तो दिस विल बी डाउटफुल। बचा तो ये सिर्फ बचा, दिस विल बी ट्रू। यहाँ पे इन्फर टू बी ट्रू जो पूछा है वो होगा आई वाला स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर डी में। हाँ तो वही तो है, मैंने वही तो आंसर बोले। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑल गैसेस आर मेटल विल बी ए, ऑल मेटल आर गैसेस, सॉरी ऑल मेटल आर गैसेस, ये भी ए होगा। सम मेटल आर नॉट गैसेस, ये ओ हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। और आई ही हमारा ट्रू है, ये लोग ने ट्रू पूछा है तो ट्रू हमारा आई वाला स्टेटमेंट है जो है ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ डी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Yes, Amina, you're right. Option number 2 is the correct answer. Sir, do you need some more time? No, no, no. I was just writing those down. Non-amphibians and non-frogs. I was trying to. Okay. वो Yeah. option 1 में I was थोड़ा confused. ओके ओके, सो अगेन ये हम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो अभी लेट्स सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नो फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा प्रोपोजिशन हो जाएगा? ई। ये दिया है फॉल्स। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ए ई आई ओ। दिस इज गिवन एज फॉल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी दिस विल बी ट्रू। True. राइट, ये क्या हो जाएगा? ओ Undetermined. यस, अनडिटरमिन्ड या डाउटफुल। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कॉन्ट्रेरी ए क्या हो जाएगा? उसका भी सेम होगा आई दिस थिंक. विल आल्सो बी डाउटफुल। यस, तो बचा क्या हमारे पास? आई जो है ट्रू, और हम लोग को यही पूछा है क्वेश्चन में कि ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है। सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। सम नॉन एम्फीबियंस आर नॉट नॉन फ्रॉग्स, ये साइड में छोड़ दो। सम फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, ये हमारा आई हो गया। ऑल फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, ये ए हो गया। सम फ्रॉग्स आर नॉट एम्फीबियंस, ये हो गया हमारा ओ। तो हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन था आई, which is option number 2. So this is square of oppositions. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन तो तुम्हें डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का ही आएगा, तो इसलिए तुम लोग को थरोली इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब ये था हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। अब इसमें ना हम लोग को एकदम सिंपल स्टेटमेंट्स थी। कभी कभार ना हम लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज कर लेते हैं ये लोग तो हम लोग को इसमें ना ए ई आई ओ को डिफरेंशिएट करने में तो कभी कभार डिफिकल्टी हो जाता है। तो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, ये तुम लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और तुम लोग याद रखना कि कभी कभार ये जो ए वाला प्रोपोजिशन रहता है ना, ऑल वाला, इसमें अभी हम लोग ऑल, इसमें ए वाले इसमें लोग ऑल वर्ड यूज करते हैं। कभी कभार ये लोग सिर्फ ऐसे मैन इज मॉर्टल ऐसा लिख देंगे स्टेटमेंट, तो तभी भी हम लोग को समझ जाना है कि ये लोग यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, ये लोग ए प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं। व्हेन देयर इज ओनली अ सिंगल वर्ड, कुछ और आगे पीछे नहीं लिखा है, ओनली सिंगुलर। ठीक है, दूसरा कभी कभार आ जाता है एवरी
या ईच ऐसे लिख देंगे, या तो एवरी लिख देंगे या तो ईच लिख देंगे, जैसे कि एवरी बर्ड इज अ मैमल या ईच बर्ड इज अ मैमल, ऐसा लिख देंगे, तभी भी हमें समझ जाना है कि दिस इज ए प्रोपोजिशन। कभी कभार हम लोग को एनी बोल देते हैं, एनी या ओनली ये बोल देते हैं। कभी कभार ये लोग बोल देंगे नन या बट ओनली। तो बेसिकली जो भी स्टेटमेंट सबको इंक्लूड कर देता है, ठीक है, जो 100% है, जो 100% सबको इंक्लूड कर देता है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता है, वो ऐसे वर्ड्स जब यूज करते हैं, जैसे कि ये सब वर्ड्स थे, इसमें 100% इंक्लूजन हो रहा है। सो दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज ए प्रोपोजिशन, ठीक है। ये तुम लोग प्लीज ध्यान रखना, नोट डाउन करते जाओ ये साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नो वाला, जो हमारा ई वाला है, राइट, जो ई वाला प्रोपोजिशन है। तो ये टोटल ऑपोजिट हो जाएगा, जो सबको एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सबको इंक्लूड कर रहा था, यहाँ पे सबको एक्सक्लूड कर देगा, जैसे कि नेवर हो गया, जैसे नो नन हो गया, ठीक है। तो ये जो भी वर्ड्स 100% एक्सक्लूड कर देते, किसी को भी इंक्लूड नहीं करते, वो वाले सारे प्रोपोजिशंस ई में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सम जो हमारा आई प्रोपोजिशन है, जो 100% नहीं है, ठीक है, जो लेस देन 100% कर देता है किसी भी चीज को, जैसे कि अ फ्यू, मोस्ट, सर्टेन, एक्सेप्ट, ये सारी चीजें हम लोग का 100% से थोड़ा उसको कम कर देती है, जो पर्टिकुलर कर देती है, यूनिवर्सल नहीं रहने देती है जो चीज, उसको हम ये सब वर्ड से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब ये सब वर्ड्स यूज होंगे तभी तुम लोग को ध्यान रखना है कि ये आई वाला स्टेटमेंट होगा। अब ये सम नॉट वाला ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ये सम नॉट वाला जो है ओ वाला, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये भी हम लोग को 100%, ये भी सेम ही है, जो हम लोग का 100% नहीं रहने देता है, बट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। तो जब सम नॉट के बदले यूजुअली ये लोग कैसे वर्ड्स यूज करेंगे, हार्डली, जो नेगेटिव वे में हम लोग को बता रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग एडवर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो एंड करते हैं, एंड विथ ly, फॉर एग्जाम्पल रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, ठीक है। ये सब वर्ड्स, ये सब जो एडवर्ब्स जब यूज करते हैं ना, तब हम लोग को समझ जाना है कि ये सम नॉट वाले स्टेटमेंट है, हमारा ओ वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल सम बिजनेसमैन, अच्छा रुको, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, बिजनेसमैन आर सेल्डम ऑनेस्ट। एक्चुअल में इन लोग का कहने का क्या मतलब है कि सम बिजनेसमैन आर नॉट ऑनेस्ट, बट ये लोग ने ऐसे लिख दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ए ई आई ओ को कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये कभी कभार ही ऐसा होता है, बस तुम लोग को फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कभी एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया तो तुम लोग को आइडिया होना चाहिए क्या कैसे टैकल करना है वो चीज़ को, ठीक है। तो यही है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तुम्हारा, इसके अलावा तुम्हें स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ डाउट्स है तुम लोग को इसमें स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस में? Not so far. ठीक है, इज इट क्लियर? जी ठीक है, ओके। तो ये था हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसके अलावा मैंने तुम लोग को आज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया था, तुम लोगों ने वो सॉल्व किया? वो जो आपने इमेजेस भेजे थे वो ना, हाँ वो लिख के नहीं, वो लाइक आई गॉट टू रीड थ्रू इट, आई वाज आउटसाइड आज। अच्छा ठीक है, तो तुम वो सॉल्व कर लेना।
ये मैंने तुम लोग को इजी वाला भेजा था, तुम ये सॉल्व कर लेना। आमीना ने तो सॉल्व कर लिया, तो उसको जो भी डाउट्स थे उसने वो भी पूछ लिया। तुम भी वो सॉल्व कर लेना, फिर वी विल सी आगे। मैं तुम लोग को भेजती रहूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एक दिन हम लोग साथ में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक है? जी। इसके अलावा मैं अभी तुम लोग का ना 2-3 क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए, वो भी तुम लोग कर लो, ठीक है? और जो लोग ये ऑफलाइन वीडियो देखने वाले हैं, आई मीन ऑफलाइन नहीं, जो लोग ये रिकॉर्डेड वर्जन देखने वाले हैं, वो लोग भी कमेंट्स में ये इसका आंसर्स लिख देना, ठीक है? अभी मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, ये तुम लोग होमवर्क में कर लेना फॉर प्रैक्टिस। अमंग द फॉलोइंग टू आर related in such a way that they cannot both be true but can be false. Every student is attentive. Some students are attentive. Students are never attentive. Some students are not attentive. ठीक है, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये कल क्वेश्चन तुम लोग मुझे बताना क्या है आंसर। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। All thieves are poor is false. Which will be true? Some thieves are poor. Some thieves are not poor. No thief is poor. No poor is thief. ठीक है, ये भी कॉपी कर लो। ओके ग्रेट। अभी आज की क्लास के लिए तो इतना ही है, बट नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोग को वापस से वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स मैंने बताया था, वो तुम लोग को रिवाइज करना है। तुम लोग मुझे पहले क्लास खत्म होने से पहले मुझे बताओ, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं? लाइक उसका डायरेक्शन जैसा जनरल टू स्पेसिफिक? नहीं, उसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। इट कैन बी ईदर डैश और डैश। ओके राइट, डिडक्टिव कैन बी वैलिड आर्गुमेंट जिसमें साउंड और अनसाउंड हो सकता है, वैसा। राइट, वैलिड। और दूसरा क्या होगा? इनवैलिड। राइट। और वैलिड अभी तुमने जैसे बताया, इट कैन बी ईदर साउंड
और अनसाउंड, और ये इनवैलिड है तो ये ऑटोमेटिकली अनसाउंड हो जाएगा, राइट? तो ये तुम लोग को रिवाइज करना है। मैंने तुम लोग को सिखाया था वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा साउंडनेस के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है? एंड वी विल लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, ठीक है? उसके लिए तुम लोग को यही कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है? कल हम लोग साउंडनेस के बारे में पढ़ेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, ऐसे ग्रुप पे बता देना मुझे, और ये प्लीज ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you. ओके, बाय।